So we were talking about the forming processes, and we learned that forming processes are of three kinds, that is hot forming, cold forming, and warm forming. Hot forming was when the mechanical working was done above the recrystallization temperature, that is zero point 0.6 of the zero point 0.6 times the melting temperature. In cold forming, the temperature is generally less than 0.3 times of melting point. Okay. And then in warm forming, the temperature is generally between 0.3 times of melting point to 0.6 times of melting point. So in the previous class, we had talked about hot forming, its advantages and disadvantages. Let's talk in this session about cold working or cold forming processes. So cold working or cold forming processes जैसे बेंडिंग है, सिंपल बेंडिंग ऑपरेशन और सिंपल ब्लैंकिंग ऑपरेशन, simple shearing operation, they are when performed at room temperature are cold forming temperature, cold working process or cold forming processes. So we know that when we do hot working or hot forming process, the strength reduce, the ductility increases. Okay. In cold working process, strength improves by the phenomena of strain hardening. I hope you remember the strain hardening, which I taught you in the previous class, that when we do straining, after the yield point, the straining becomes tough. You know? It means that more force is required to do more deformation. जैसे जैसे यील्ड पॉइंट से ऊपर आते जाएंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी. Or in other words, you can say that it becomes tough to strain, it becomes hard to strain after this yield point, and so this phenomena is called strain hardening. And cold working, this when it is done at room temperature. Okay. So in cold working, strain hardening happens. So it means that the strength increases. It means that कि कहीं यहाँ कहीं प्रोसेस हो सकता है, यहाँ भी कहीं है ना, यहाँ भी कहीं यहाँ तक स्ट्रेन आप दे सकते हैं. Generally, we give stress more than the yield point for getting permanent deformation. And every time when we give some deformation, it means that we need more force, more power to create more straining. तो स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाती है ना. तो कोल्ड वर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. So it is done below room temperature, sorry, below recrystallization temperature or below 0.3 times of melting temperature generally, or generally performed at room temperature. थोड़ा सा माइल्डली एलिवेटेड हो सकता है या रूम टेम्परेचर हो सकता है. okay? अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, तो यू कैन से दैट स्ट्रेंथ जनरली गेट्स इम्प्रूव्ड. But when we do the processing at high temperature, है ना, रूम टेम्परेचर से ऊपर है लेकिन 0.3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे है, तो यू नो दैट व्हेन वी डू प्रोसेसिंग एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रेंथ रिड्यूसेस बट डक्टिलिटी इंक्रीजेस, है ना.
Am I clear on this part? Yes, sir. हाई टेम्परेचर पे डक्टिलिटी बढ़ती है लेकिन स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है. तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, और थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा माइल्डली एलिवेटेड टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो डक्टिलिटी इंप्रूव होगी. एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ विल आल्सो रिड्यूस, है ना. तो from a manufacturing viewpoint, cold working has a number of distinct advantages, and actually a number of cold working processes have become extremely important. Recent advances have added to their attractiveness, and the trend toward increased cold working appears likely to continue. So when compared to hot working, let's list down the advantages of cold working when compared to hot working. Okay, so the very first advantage is कि कोई हीट का जरूरत नहीं है ना. नो हीट इज रिक्वायर्ड. और ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू हैव एन एडिशनल इक्विपमेंट which has to impart heat energy. So there is a big saving in the energy loss. दूसरा एडवांटेज, सरफेस फिनिश किसकी अच्छी होगी, हॉट वर्किंग की या कोल्ड वर्किंग की? एनीवन? Sir, cold working ki, because in hot working there would be possibility of scale formation. Yes, so in hot working there is a ग्रेन का फॉर्मेशन दोबारा होता है ना. देयर इज अगेन सॉलिडिफिकेशन एंड मेल्टिंग थिंग, और ये मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन जहां भी आ गया वहां पे सरफेस आपकी खराब हो जाएगी. कोल्ड वर्किंग में ऐसा मेल्टिंग जैसा कोई चीज है नहीं, तो सरफेस फिनिश इज इज गुड, है ना. यू कैन राइट बेटर सरफेस फिनिश. सुपीरियर डायमेंशनल कंट्रोल. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस the dimensional control in cold working is easy and better due to the same melting and solidification thing. Okay, जहां भी हीट ज्यादा है वहां कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऐसा मान लीजिए. तो जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डायमेंशनल वेरिएंसेस ज्यादा होंगे. यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई हीट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए डायमेंशन को प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सकता है. In fact, it can be precisely controlled so much that the secondary processes are not required. ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, जैसे कास्टिंग हो गया या हॉट वर्किंग हो गया, उसमें ये सेकेंडरी प्रोसेस जैसे मशीनिंग की ज़रूरत होती है ताकि ना सिर्फ सरफेस क्वालिटी इंप्रूव हो जाए बल्कि वो अपने उस डायमेंशन का भी हो जाए जिसमें चाहिए, है ना. बट कोल्ड वर्किंग में we don't need post processing, we don't need secondary processes. और बताइए थोड़ा. स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना. स्ट्रेंथ और क्या बढ़ जाती है? फटीग सुना है आपने? FATIGUE. एनीवन? Breakage. Fatigue Failure is of not breakage. Fatigue is a kind of loading. yes sir, that वो aspect में भी सुना. What is this kind of loading? Fatigue is positive, negative. It means that the nature of load changes alternatively. Sometimes it becomes tension, then compression, then tension, then compression. It is fatigue. Okay. So fatigue resistance भी बढ़ जाता है. स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, fatigue resistance बढ़ जाता है.
वियर प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती हैं, वियर आप बोल सकते हैं वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं। और ये सब का एकमात्र कारण है स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक, वियर रेजिस्टेंस और वियर प्रॉपर्टीज, यू अंडरस्टैंड दिस or not? Am I clear on this part? Wear, are you getting this? Wear. So when there are two surfaces, they rub each other. What they do is they do wear, है ना? तो ये दोनों पार्ट वियर आउट हो जाते हैं, मतलब घिस जाते हैं या छोटे हो जाते हैं अगर उनका प्रॉपर वियर रेजिस्टेंस नहीं है। सो वियर रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये जो घिस के छोटे हो जाने की जो प्रॉपर्टी है ना, वियर आउट हो जाने की, वो कम हो जाती है। तो वियर प्रॉपर्टीज ऑल्सो इम्प्रूव्स। कोल्ड वर्किंग में जो ग्रेन्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं वो एकदम रिफाइन हो जाते हैं और एक डायरेक्शन में आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। और क्योंकि ये सारा प्रोसेस बहुत ही लो टेम्परेचर पे किया जाता है इसलिए कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट when it is done at room temperature there are very less chances of contamination, so contamination problems are also minimized. So these were the some of advantages. Let's talk about some disadvantage when compared to hot working. So what are the disadvantages? Anyone? Shrey. Shrey, Yes. are you, yeah, can you say any disadvantage? No? Ishan? Ishan, can you hear me? Ishan, are you there? No? So that's a very big problem of offline education. Sorry, online education. Anyone? Disadvantage? अच्छा, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी या कम फोर्स की जरूरत? सर ज्यादा फोर्स की है क्योंकि ज्यादा कोल्ड force। वर्किंग में ज्यादा फोर्स और ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, हेवी इक्विपमेंट्स। हाँ, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इट हीट, है ना। हॉट Yes. वर्किंग क्या है, गर्म कर रहा है तो कम फोर्स की जरूरत होती है, आसानी से वो The lifespan of tools will also decrease because it is all these metals are going to be hard. So but how the lifespan is related to this thing, I don't know how. sir, so in cold working, metals would be harder, right? करेक्ट, So more force हार्ड will होंगे, be needed to बेटर apply. होंगे, हार्ड होंगे, बेटर होंगे, तो फिर वो लाइफ खराब कम कैसे हो जाएगी? Sir, और ज्यादा force apply करना पड़ेगा ना? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो उसकी लाइफ खराब कम कैसे होगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। The life of the tools. Life of the equipments and tools. Yes, sir. Okay, because we are applying more force, so you are saying that the life of those tools will be less. That is what you are saying. Sir, also I guess in this the metal surface it should be clean. Sir, it would be hard to change the shape of metals. Correct. We need more force. Simple. Higher forces are required. Correct. Yes, sir.
है ना? If we are applying higher force and we are not applying heat, would the metal be prone to crack formations? मेटल मीन्स प्रोडक्ट, है ना, Yes. जो आप बना रहे हो। Yes, sir. नहीं, So would बिल्कुल it नहीं, be like बल्कि वो तो ज्यादा अच्छा होगा ना। okay? Sir, but it will be less ductile, that's why. या इट विल बी लेस डक्टाइल, दैट इज फाइन, है ना, बट क्योंकि वहां पे ग्रेन रिफाइनमेंट हो जाता है ना, हीट इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, एक चीज जो आपने सही, जो थोड़ा बहुत आप सही गेस कर पा रहे हैं, वो है कि उसके अंदर एक रेसिडुअल स्ट्रेस रह जाता है, जो मुझे लगता है आप सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू से दैट देयर इज अ रेसिडुअल स्ट्रेस। क्या है कि जब हम लोग हॉट वर्किंग करते हैं तो उसमें क्या है कि वो स्ट्रेस रिलीव्ड हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। लेकिन जब कोल्ड प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारा फोर्स देते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस उसके अंदर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेस। ओके, सो देयर आर रेसिडुअल स्ट्रेसेस which may cause failure, but I am saying may exist, not necessary. Okay, तो अगर रेसिडुअल स्ट्रेसेस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग एनीलिंग करते हैं जनरली। एनीलिंग यू नो, मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा, है ना, उसको स्लो कूलिंग करते हैं। एनीलिंग मीन्स स्लो कूलिंग, मतलब उसको थोड़ा सा हीट करने के बाद उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे कूलिंग का रेट कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे उस कूलिंग प्रोसेस के साथ उसके रेसिडुअल स्ट्रेसेस निकल जाते हैं। ओके, मटेरियल इज लेस डक्टाइल। ओके, इज इट ओके और एनीथिंग एल्स? अच्छा, आपको कोई प्रोडक्ट लेट से बनाना है तो आप कोल्ड वर्किंग से बनाना चाहेंगे या हॉट वर्किंग से बनाना चाहेंगे? सर डिपेंड्स क्या प्रोडक्ट बनाने और मतलब कॉस्टिंग है, क्योंकि अगर हमें हॉट वर्किंग से जाना है तो हमें मतलब पूरा हीट करना पड़ेगा, तो उसमें मतलब कॉस्टिंग भी थोड़ी अफेक्ट करेगी। यस, तो इसका मतलब है कि आप कोल्ड वर्किंग से जाना चाहेंगे क्योंकि उसमें कॉस्टिंग कम होगी लेकिन फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे, करेक्ट? यस सर। सो कोल्ड वर्किंग इज अ प्रीफर्ड वन अनलेस अदरवाइज द प्रोडक्ट इज सो लार्ज कि कोल्ड वर्किंग के लिए जो फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो। अगर force requirement is very very large, then we should go for hot working, otherwise we should do it in a cold way, आराम से ठंडे टेम्परेचर पे। so cold working is always preferred if the force requirement is not very large। और इसमें अगर आपको डक्टिलिटी करनी है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। थोड़ा सा अनीलिंग कर दीजिए तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी हट जाएंगे, बट आपको उतना ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा जितना हॉट वर्किंग में करना पड़ता है। सो और कोल्ड वर्किंग में ये सब करने के बाद आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, जैसे सुपीरियर डायमेंशनल कंट्रोल, सरफेस फिनिश, है ना, लेस कंटामिनेशन। सो कोल्ड वर्किंग इज ऑलवेज प्रीफर्ड। ये दोनों को अगर आप मिला देते हैं, मतलब थोड़ा सा इसका एडवांटेज ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका, तो वार्म वर्किंग या वार्म फॉर्मिंग हो जाता है। हम लोग वार्म वर्किंग पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इट्स जस्ट दैट इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बोथ, है ना। इसमें वर्किंग टेम्परेचर 0.3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग से थोड़ा ज़्यादा होता है ना, वर्किंग टेम्परेचर, और 0.6 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है। It's a intermediate kind of forming and it can take the advantage of both। इसमें एनीलिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि रेसिडुअल स्ट्रेस कम होते हैं, है ना।
थोड़ा सा फोर्स कोल्ड वर्किंग से कम हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर वार्म वर्किंग, है ना. थोड़ा सा इधर से एडवांटेज ले लीजिए, थोड़ा इधर से. So now you know what are the advantages and disadvantages of hot working and cold working. Hot working के disadvantages क्या होते हैं? Anyone? If I go for disadvantages of hot working, Sir, poor surface finish. poor surface finish. Correct. Like thermal expansion होगा तो dimensional accuracy भी Correct. बहुत होगी. Correct. Contamination हो गए, chemical reaction होगा, oxidation होगा, scaling होगी, ऑक्सीडेशन, ना. यस. एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हीट करना है. ओके, तो ये सारे ही डिसएडवांटेजेस हैं. तो this was all about basic difference between hot working and cold working, and let's discuss some of the processes which come under the category of forming processes. So a very few important processes are like rolling. ये सब फॉर्मिंग प्रोसेसेस में आते हैं. फोल्जिंग, ड्राइंग, deep drawing. These are the processes which we will discuss each one of them in a bit detail. Bending, and the last one is extrusion. So I hope you know most of them. Let's discuss a little bit about each one. तो रोलिंग क्या होती है? रोलिंग में दो रोलर्स होते हैं, सिंपल, जो कि अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करते हैं. एंड देन एक इनपुट मटेरियल होता है जो दोनों रोलर्स के बीच में से जाता है और आउटपुट डायमेंशन इनपुट से कम हो जाती है. तो रोलिंग मिल्स अगर आपने सुना होगा ना, प्रोबेबली, तो ऑल दोस रॉड्स, टीएमटी बार्स, they are made out of rolling mills. So rolling mills are nothing but they have a set of rollers through which this dimensional variation takes place, and in this process this job is drawn between by means of the friction, okay, between the opening, through the opening between two rollers. The shape and size of the product are decided by this gap between rolls and their contours. This is a very useful process for production of sheet metal and various common sections like rail channels, angle, round. All of these are made by rolling processes. Okay. Let me see if I have a video of rolling.
So this was the video of rolling, hot rolling, but it does not mean that there is no cold rolling. Okay, cold rolling is also done extensively. Then forging's video I have already shared with you when I was discussing the forming. In forging, what happens is that a material is actually placed between two dies. And then force is applied. Okay. So that it changes its shape. तो forging generally hot ही होती, but it's not that cold forging is not done, but most of the forging operations in the world are performed in hot condition. So material is here squeezed between two or more dies to alter the shape and its size. Depending upon the situations, the dies may be closed or may be open, that you have seen in some of the videos. Drawing. Drawing is an operation of reducing the cross section, very similar to rolling, but इसमें diameter एक wire की तरह कर देते हैं ना, it becomes so small. So what happens in this drawing process is that there is this workpiece which is actually fed through a die. इस डाई में इतनी ही ओपनिंग है कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. दिस इज द डाई थ्रू विच इट इज बीइंग फेड. This edge is held in a gripper, and this is being pulled this side by the help of this gripper. So this is the gripping device, है ना. एक बार वर्कपीस को यहाँ से फेड कर दिया, फिर पीछे से फोर्स नहीं लगाते हैं, हमेशा आगे से फोर्स लगाते हैं, है ना, with the help of this gripper. And that is why this process is called drawing. जनरली ड्राइंग से जो आउटपुट है वो उसका डायमीटर बहुत ही कम हो जाता है, समथिंग लाइक वायर. ओके, मे बी इवन ए hollow tube or bar is also made by using this process. So this is the die. Am I clear on this? Is there any confusion regarding this drawing process? Okay, so then let's come to deep drawing. Deep drawing क्या होता है? So in this process, generally a cup shape is produced. और अगर आपने अपने घर में बने हुए बर्तनों को देखा होगा, दे आर ऑल मेड बाय डीप ड्राइंग प्रोसेस. डीप ड्राइंग में क्या होता है कि देयर इज ए फिक्सचर समथिंग लाइक दिस, और इसके ऊपर आप अपनी शीट रख देते हैं, मेटल शीट, जिसकी कि
फॉर्मिंग करनी है, एंड देन ए suitably shaped punch को पुश करते हैं. So what will happen? It will take, the sheet will take the shape of this die, है ना, या होल्डिंग डिवाइस. तो वो जो शीट पहले ऐसे थी अब वो ऐसे हो जाएगी. सो दिस इज नथिंग बट ए कप शेप प्रोडक्शन, है ना. तो आपके घर में जितने भी ये बर्तन ऐसे बने होते हैं वो सब डीप ड्राइंग प्रोसेस से ही बनते हैं. So this process, deep drawing, is a process of making cup shaped product with the help of a punch and die. The sheet metal is held over the die by means of blank holder, है ना. यहाँ पे कुछ तो ब्लैंक होल्डर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स रख देते हैं आप, ऐसा मान लीजिए. एंड so that's all. बेंडिंग इज सिंपल बेंडिंग ऑपरेशन, है ना. किसी भी चीज को बेंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसी डाई ले लीजिए ना, वर्क होल्डिंग डाई. यहाँ पे आप शीट रख दीजिए और यहाँ पे एक पंच, कुछ इस तरह से फोर्स लगाइए तो फिर ये बेंड हो जाएगा. ठीक. तो अगर ये कप शेप में नहीं बेंड हो रहा है बल्कि एक शार्प कॉर्नर की एज में बेंड हो रहा है, देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड बेंडिंग. एक्सट्रूजन क्या है? एक्सट्रूजन इज वेरी सिमिलर टू ड्राइंग प्रोसेस, बट विद द ओनली डिफरेंस इज दैट ड्राइंग में आगे से खींचते हैं, है ना, ग्रेपर लगा के आगे से खींचते हैं, लेकिन एक्सट्रूजन में क्या है, वी पुश इट, वी डोंट pull it, we push it. So this is a process which is basically similar to drawing, but in this operation the workpiece is compressed in this closed space, forcing the material to flow out through a suitable opening called die. In this process only the shapes with constant cross sections can be produced. Okay. Am I clear between the difference between extrusion and drawing is clear? Extrusion में पीछे से push करते हैं और drawing में आगे से pull करते हैं. That's the only difference. So this was all about various kinds of forming processes. So now let's go to mechanics part, which is more relevant to manufacturing science course we are studying. So we will study mechanics of various metal forming processes. So this analyzing various forces and stresses, this all comes under the topic of this mechanics of metal forming process. This analysis of the stresses in metalworking processes has been an active area of applied plasticity for the past 50 years. Since the forces and deformation generally are quite complex, it is usually useful to use simplifying assumptions to obtain a tractable solution. Because of the strains involved in deformation processes are quite large, it is usually possible to neglect elastic strains and consider only plastic strains. So here I am talking about some of the assumptions which we will take during the mechanics, during the analysis of stresses. ना, पहला ये कि हम लोग
ज़्यादातर केसेस में इलास्टिक स्ट्रेन को छोड़ देते हैं और प्लास्टिक स्ट्रेन को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेन प्लास्टिक स्ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना। इलास्टिक स्ट्रेन सिर्फ इतना ही हुआ और प्लास्टिक स्ट्रेन इतना हुआ। तो यहाँ तक देखिए इलास्टिक स्ट्रेन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना ही हुआ, इट्स वेरी स्मॉल, and plastic strain is too large. So in many cases you will see that the elastic stresses are being ignored during the analysis process, because we are trying to simplify the process, simplify the mechanics part. दूसरा, जनरली यहाँ से ये देखिए स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, बट इसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं, वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन because we don't have any particular data so that we can use strain hardening thing. तो हम लोग यील्ड स्ट्रेस को ही एक कंसीडर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे जो स्ट्रेस है यील्ड स्ट्रेस, और इसको ही कंसीडर करते हैं, तो स्ट्रेन हार्डनिंग को निगलेक्ट कर देते हैं. So occasionally we will neglect elastic strain, we will also neglect the strain hardening. Okay, better to write down. So elastic strains are neglected. Strain hardening is also neglected. एक चीज का ध्यान रखिए कि आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इंजीनियर हैं, है ना. एज ए साइंटिस्ट यू नीड टू कंसीडर एवरी एस्पेक्ट. तो सारा एनालिसिस पार्ट जो है वो बहुत ही टफ हो जाता है ना. हम लोग क्योंकि चीज़ों को मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को आसानी से करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्ट करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें. सो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग analysis revolves about a lot of assumptions, you know? So these are some of the assumptions that we will take. और क्या, material isotropic, है ना, that material is isotropic and homogeneous. No material is isotropic and homogeneous, but इसको भी कंसीडर करते हैं. Isotropic simply means that properties are same everywhere and material has same constituent everywhere throughout the material, which generally does not happen. जनरली जो डिफॉर्मेशन होता है ना वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, बट वी विल कंसीडर हियर दैट डिफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म इनसाइड द डाई. तो इतना सब एजम्पशन लेंगे तो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना. ऐसे nowadays we have a lot of software based tools like where we can perform the analysis using the processes called FEM, finite element method, or finite volume method, you know. So you can use softwares like ANSYS or MATLAB, and a lot of softwares are actually available where you can do such analysis on softwares. Okay. So FEM is a great tool to learn the mechanics of these processes. Some of the part of this FEM or ANSYS you will learn in CAD/CAM course.
here we are trying to do analytical modeling. So the principal use of analytical studies of metalworking process is for determining the forces required to produce a given deformation for certain geometry prescribed by the process. Okay. Here what we are trying to do is we are trying to find out various kinds of forces which are required for deforming the body, or you can say for making the product. तो ये इस कैलकुलेशन से क्या हो जाता है कि दे आर यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग और डिजाइनिंग द इक्विपमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब. But before proceeding towards this, we may have to go back to mechanics of rigid bodies course again and see that there are few things still remembered by you. तो आपने शायद फेलियर थ्योरीज पढ़ी होगी, पढ़ी है या नहीं? लेट मी नो. मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कोर्स में आपने फेलियर थियरीज पढ़ी है या नहीं? आप बोलेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा पढ़ाना. एनीबडी? Am I audible? Yes, sir. तो थोड़ा सा बताइए ना मुझे, मेरी थोड़ी सी मदद करिए और बताइए कि आपने मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कोर्स में फेलियर थियरी पढ़ी है या नहीं? Sir, I have an idea of what it is, but I don't think we have studied it. Okay. So only definition, like I think we know that. Like Conditions, Tresca's theory, von Mises yeah. theory. No, sir. Not. ये सब पढ़ाया नहीं गया आपको? So can you please repeat the name of the theories? Tresca, von Mises. No, sir. No, sir. क्या पढ़ा क्या है आपने रिजिड बॉडीज? Okay, leave it. You know principal stresses and principal strain Mohr circle or not? Yes, sir. That we are aware of. Aware of. Okay. So you can draw Mohr circle, correct? या नहीं? Mohr circle पढ़ा है या नहीं? Means I am very surprised to know nobody is responding me. Have you studied Mohr circle? Can you draw? So I don't think we have studied. What actually have you studied? I mean, what have you studied? Only the mechanics part, kind of velocity and acceleration? Sir, in mechanics of rigid body, we only studied, the bending moment and SFD, BMD, like that. yeah. Okay. Yes, it was mainly about bending moment and beams and all. Yes, sir. SMD, BMD, and for different cases like supporting beams, cantilevers, and all. तो ये मोहर सर्किल जैसी कोई चीज नहीं बताई गई आपको ना? No, sir, क्योंकि sir, it was a 2-month course for us, so not everything was covered in that. That's a big problem. I think you should have another course like that. Otherwise, it will become a very big problem. Anyways, let me try to go back to these things. So we know that this plastic deformation takes place when the applied stress level exceeds certain value or certain limit, which is called yield limit or yield stress. Okay.
we shall therefore consider the criteria for yielding first. So there are a number of such criteria proposed by different researchers, जिसको कि हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में फेलियर थियरीज भी बोलते हैं. फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में यील्डिंग का मतलब फेलियर होता है ना. जहां भी परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ उसको फेलियर कंसीडर करते हैं, क्योंकि मटेरियल को डिफॉर्म नहीं होना चाहिए. तो इसलिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कोर्स में इसको फेलियर थियरी बोलते हैं. लेकिन हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं यील्डिंग थ्योरी, या वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए लिमिट और यील्ड स्ट्रेस और ए पॉइंट सच दैट यील्डिंग स्टार्ट्स, है ना. तो देयर आर a number of such criteria, but we will consider our part to these two theories mainly, Tresca and von Mises. There are actually 6 or 7 failure theories, लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रेस्का और वॉन माइसिस, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज ये दोनों ही होती है. ओके, ट्रेस्का थ्योरी को ट्रेस्कास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी भी बोलते हैं. ट्रेस्कास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी. So we know that this plastic flow ये तभी होता है जब मटेरियल के अंदर स्लिप कंडीशन आती है. ओके, विच इज बेसिकली शियरिंग. मटेरियल जैसे स्लिप it's an atomic thing, but let me tell you that material starts shearing after yield stress. shear का मतलब थोड़ा थोड़ा atomic flow होना शुरू होता है. okay, so this plastic flow actually depends on slip, which is actually a shearing process. Tresca in 1865 suggested that plastic flow initiates when the maximum shear stress reaches a limiting value, है ना. ट्रेस्का ने बोला कि प्लास्टिक फ्लो तभी शुरू होता है, प्लास्टिक फ्लो इनिशिएट्स when maximum shear stress reaches a limiting value. And this limiting value is defined as shear yield stress. Shear yield stress. And इसको K से लिखते हैं. तो ट्रेस्का ने बोला कि अगर if the principal stresses at a point in the material are sigma 1, sigma 2 and sigma 3, such that sigma 1 is greater than sigma 2, which is again greater than sigma 3, then the maximum shear stress tau max is given by this formula, that is 1/2 difference of maximum to minimum. So plastic deformation will occur when this tau max is equal to K. K is again a material property, है ना, shear yield stress जो बोलते हैं. You understand?
अच्छा, किसी भी मटेरियल में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है ये थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। आई बिलीव कि आपको ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लेट से एक मटेरियल पे आपने फोर्स लगा के रखा हुआ है ना, आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव, और इसके साथ ही साथ उस पर शियर फोर्सेस भी लग रहे हैं। तो मटेरियल के अंदर कोई ऐसा एक प्लेन होता है जहां पे अगर आप ऐसे वेरियस एंगल्स को अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे है ना मटेरियल के अंदर कि किस एंगल पे कितने फोर्सेस आ रहे हैं, तो आपको एक ऐसा प्लेन मिलेगा जहां पे ये शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएंगे। ऐसे प्लेन को बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पे मतलब जनरली ऐसा 45 डिग्री पे हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट इन मेनी केसेस इट इज एट 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है, एंड इन दैट केस वहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं सिग्मा, वो मैक्सिमम होते हैं और शियर स्ट्रेस जो है वो जीरो होता है। इस प्लेन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और इस प्लेन पे जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। एम आई क्लियर? प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? A stress on principal plane is principal stress. Principal plane is a plane on which shear stress is zero. ठीक, तो अगर आपका मटेरियल है जिसपे सिर्फ टेंसाइल लोड लगा है तो आपका हर प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, एवरी प्लेन, क्योंकि शियर स्ट्रेस जीरो है ना। लेकिन अगर उस पर टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर सब कुछ लगा है तो उस मटेरियल के अंदर एक ऐसा प्लेन आप फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है। वो फाइंड करने का जो तरीका है वो मोहर सर्किल होता है एक्चुअली, है ना। एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसको मोहर सर्किल बोलते हैं, आप उससे पता पा सकते हैं कि कौन से प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा। दैट्स अगेन ए वेरी रिगोरस प्रोसेस ना, ड्रॉइंग मोहर सर्किल, बट एनीवेज। और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 इसलिए लिया है क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में है ना। तो इस प्लेन पे जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो है, यहाँ पे 3 डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस काम कर सकते हैं। स्ट्रेस को हमेशा it actually has 9 direction, you know, that is why I say stress and strain both are tensor quantities, है ना, they are neither vector nor scalar anyhow। तो अगर उसके 3 डायमेंशनल में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 हैं, और सिग्मा 1 सबसे बड़ा है और सिग्मा 3 सबसे छोटा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो उस मटेरियल में जनरेट हो सकता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। This is the maximum shear stress which can be generated inside the material which is subjected to force। तो अगर ये टाउ मैक्स shear yield stress के बराबर हो जाता है तो ही yielding होगी, ऐसा ट्रेस्का ने बोला। अभी ये shear yield stress is again a material property, okay। वॉन माइसेस ने थोड़ी सी दूसरी थ्योरी दी जो स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड है। वॉन में V जो है वो स्मॉल लेटर है। वॉन माइसेस क्राइटेरिया, इसको वॉन माइसेस मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी भी बोलते हैं। एक्चुअली वॉन माइसेस क्राइटेरिया
ट्रेस्का से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास क्या वैल्यू है, बट वॉन माइसेस इज़ मोर एक्सेप्टेबल। तो वॉन माइसेस ने 1913 में ये थ्योरी दी एंड he proposed that plastic flow occurs when shear strain energy reaches a critical value. Okay, so he said that plastic flow occurs when shear strain energy reaches a critical value. तो shear strain energy या strain energy सिंपल, उसका फॉर्मूला होता है 1/6 G सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। ये सारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। ठीक, G is the constant of torsion और shear है ना, टाउ इज इक्वल टू गामा जी। तो ये वाला जी आ गया यहाँ पे। U जो है वो स्ट्रेन एनर्जी है। ये फॉर्मूला आपको मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज की बुक में मिल जाएगा, है ना। यू कैन इजीली एक्चुअली derive this, that U is equal to 1/6G sigma square, है ना। So according to this equation, the plastic flow initiates when the right hand side of this equation reaches a particular value. Let's say A, है ना। तो finally the von Mises criteria is sigma 1 minus sigma 2 का whole square plus sigma 2 minus sigma 3 का whole square plus sigma 3 minus sigma 1 का whole square is equal to 6A into G, which is again a constant. Let's say it is again a constant C. तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ए तक पहुंचती है तो प्लास्टिक फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा वॉन माइसेस साहब ने बोला। अच्छा, देयर इज ए टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस एंड देयर इज शियर यील्ड स्ट्रेस, और दोनों में एक रिलेशन होता है, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस एंड शियर यील्ड स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कोर्स में पढ़ाई जानी चाहिए थी, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप कैसे मिलती है, बट इट इज़ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस जो होता है सिग्मा वाई, वो जनरली इसका आधा होता है, यील्ड स्ट्रेस का, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस का आधा होता है ना। शियर यील्ड स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस का आधा होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी वन डायमेंशनल ट्रेस्का इक्वेशन, है ना। तो ट्रेस्का ने बोला कि अगर 1/2
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये एक पर्टिकुलर वैल्यू k तक पहुंच जाता है तो प्लास्टिक फ्लो इनिशिएट होता है ना। अगर ये वन डायमेंशनल है तो सिग्मा 2 नहीं होगा, लेट्स से सिग्मा 2 0 हो गया है ना। और अगर हमने इसको यील्ड तक कर दिया है, लेट्स से सिग्मा 1 इज सिग्मा y, तो सिग्मा y बाई 2 इज k। तो अगर ये k जो है वो सिग्मा y बाई 2 की वैल्यू तक पहुंच गया तो प्लास्टिक फ्लो हो जाएगा। ओके अगर वॉन माइसिस में अप्लाई करें तो लेट्स से कि ये भी वन डायमेंशनल है तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 0। ओके तो ये हो जाएगा और सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा y के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि c जो है इज एक्चुअली 2 सिग्मा y स्क्वायर। That is also equal to 6 Ag। ये वन डायमेंशनल केस में हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा आपको शायद मोहर सर्किल पढ़ाना पड़ेगा, बट let's have a case of pure torsion. अगर कोई मटेरियल है जो प्योर टॉर्शन में है, प्योर टॉर्शन का मतलब है कि सिर्फ शियर स्ट्रेस लगे हुए हैं उस पर, है ना। So this material is under pure torsion. So if the material is under pure torsion, तो इसके जो 45 डिग्रीज पे जो प्लेन होंगे वो प्रिंसिपल प्लेन कहे जाते हैं। वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है और वहाँ पे इट विल बी सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओनली, दैट इज one of tensile nature and another of compressive nature. I suppose you may not understand this part. But if this thing occurs, then okay, leave this part. No, this will be a bit tough for you, but let me just say that sigma 1 here becomes k and then sigma 3 becomes minus k. That is the value of principal stresses. But anyways, मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन है ना, यहाँ पे वॉन माइसिस में के केस में अगर हम ये क्राइटेरिया लगाते हैं, व्हेन द मटेरियल इज अंडर प्योर टॉर्शन, then k becomes sigma y by root 3. ठीक है, ट्रेस्का कहते हैं कि फेलियर तब होगा जब k इज सिग्मा y बाई 2, और वॉन माइसिस कहते हैं कि फेलियर तब होगा जब k इज सिग्मा y बाई रूट 3।
है ना. इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट इट्स जस्ट लाइक दैट. सो ऐसा भी बोलते हैं कि वॉन माइसेस का जो क्राइटेरिया है, इट इज मोर रियलिस्टिक देन ट्रेस्कास क्राइटेरिया. सो देयरफॉर वी विल यूज दिस मोर ऑफन to relate K and sigma y. K is shear yield stress, okay? Sigma y is tensile yield stress. So that's all for today. Is there any question?